Hello students, I hope you all are doing well. So yes, welcome once again in CPJ Academy. In today's lecture, you will gonna learn about muscular tissue, okay? And if you want to learn about epithelial or connective tissue, so yes, I have provided a link in the description box so you can go through that. Okay, so in today's lecture you will gonna learn about different type of muscles. Okay, different types of muscles. As you can see, we have cardiac muscles, skeletal or smooth muscles too. Okay, the cells that that are involved in the muscular tissues. Okay, the origin and so on. So just let's start. So see, it's like muscular tissue. The thing is, the very first thing that the cells which are involved in the formation of muscular tissue, okay, those cells are called myocytes. Okay, so those are myocytes. Then the second thing which is very important is the origin, like how they originate. So muscular tissue का जो origin है, that is mesodermal. This is very important from the point of view of your exams, on the or the point of view of NEET too. This is very important. And then after that, the very very basic function you can say that muscle tissues involved in, as you know very well, it is like in the movement, or the another name for the movement is, you can say, locomotion. Okay, these both have same meanings. Okay, movement and locomotion is same. Now next thing, very important is that they can contract or relax. Now the thing is, why they are contracting or relaxing? Okay, they have two questions, like why they are doing this, why these muscle tissues are contracting or relaxing. So this is for the movement, okay, for the locomotion. This is their ये ऐसा कर रही हैं. And then how they are doing that, contraction and relaxation कैसे हो रहा है. Okay, in a nutshell, if you want to learn that, it's a very simple thing that there are certain neurons, okay, जिन्होंने पूरी आपकी बॉडी को चला रखा है. अगर न्यूरॉन्स नहीं होंगे तो आप एक छोटे से छोटा काम भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यही सिग्नल देते हैं. इन केस ऑफ मसल टिश्यू, इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, सो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये सिग्नल देते हैं मसल टिश्यूज को, और यू कैन से मसल सेल्स को, दैट मीन्स मायोसाइट्स को, तभी आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है. ओके, नाउ द थिंग इज, न्यूरॉन तो सिग्नल दे रहे हैं, बट व्हाट काइंड ऑफ केमिकल्स दे आर रिलीजिंग. ओके, सिग्नल की फॉर्म में जो केमिकल है वो क्या है, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर. ओके, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर्स. Just stay connected. I will gonna tell you this thing in a very briefly manner or very deep manner too, because this is very important, from the point of your exam. See, students get so much confused that between two terms, that is depolarization and depolarization. Okay, but अब आप confused नहीं होंगे, because I am going to make this concept little bit easier for you guys. Okay, so see, depolarization or polarization समझने से पहले you should know the normal state of a cell. Okay? Normal state of a cell means, you can say, let's just like imagine this is a cell. Okay, this is a cell. नॉर्मल स्टेट में क्या होता है, पोटेशियम का जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर, ओके, इनसाइड द सेल ज्यादा होता है, और बाहर की तरफ, दैट मीन्स आउटसाइड द सेल, क्या ज्यादा होता है, दैट इज सोडियम का कंटेंट ज्यादा होता है. ओके, नाउ जस्ट लेट्स टॉक अबाउट द सिग्नल. ठीक है, मान लो ये न्यूरोट्रांसमीटर आया. ओके, न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, सिग्नल देता है किसको, आपकी सेल्स को. उसके लिए क्या करता है, यहाँ ये सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है. एक पॉइंट आपको याद रखना है कि फॉर ईच न्यूरोट्रांसमीटर, let's just we take just a example of the acetylcholine. Okay, this is a chemical which is required for the contraction of the muscle tissue, let's say. Okay, so ये रिसेप्टर जो है पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर के लिए सेपरेट होगा, सेम नहीं होगा. ठीक है, जैसे हर ताले की चाबी अलग होती है, सेम उसी वे में हर रिसेप्टर के लिए एक अलग केमिकल चाहिए होगा. क्लियर. अब न्यूरोट्रांसमीटर जब यहाँ आके बाइंड करेगा, ओके, अभी क्या था, सोडियम बाहर ज्यादा है, पोटेशियम अंदर है,
ये लेस परमिएबल है, ठीक है, कि इनको इजीली जाने नहीं दे रहा पहले नॉर्मल स्टेट में। बट अब क्या, वंस दैट न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स विद द सेल, सो दैट परमिबिलिटी चेंज, ओके, दैट मीन्स दैट सेल wall or the cell membrane becomes freely permeable, okay, freely permeable. Freely permeable, that means the concentration of potassium will be less in inside, okay, that means potassium will start move outside while this sodium will start enter inside, okay। जब ये सोडियम अंदर, अब मतलब नेक्स्ट स्टेट आप ये बोल सकते हैं, अब सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा हो गई और पोटेशियम की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होगी, सो दिस इज अ काइंड ऑफ depolarization when the concentration of the potassium is outside, you can say very few, or the concentration of the sodium is more inside as compared to the outside, okay। Now once that is freely permeable, or you can say that is in a depolarization state, उसके बाद क्या होगा, जब ये सब कुछ लाइक न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ बहुत सारे बाइंड कर गए, ठीक है, कंसंट्रेशन अब यहाँ पर इंक्रीज हो गई, उसके बाद क्या होगा, जो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम स्टोर है, ओके, बट वंस द सेल बिकम्स डीपोलराइज, उसके बाद क्या होगा, जो कैल्शियम आयंस है वो भी सेल के अंदर इंक्रीज होने लग जाएंगी, ओके, रिलीज होंगे ये, और ये इसका अमाउंट जो है, कंसंट्रेशन जो है वो सेल के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, ओके। दिस इज हाउ योर मसल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे इसी वजह से आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब रिलैक्सेशन के लिए क्या होगा, इसका रिवर्स होगा, ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो नहीं बाइंड करेंगे यहाँ पर, ओके, तो उस पॉइंट पे आपकी रिलैक्सेशन होगी, मतलब फॉर रिलैक्सेशन जो आपका कंसंट्रेशन है कैल्शियम का, दैट शुड बी लो, एंड फॉर कंट्रैक्शन this amount of calcium should be high. In a nutshell, you can remember that thing, okay। Now there must be a question in your mind कि ये जो न्यूरॉन है ये सिग्नल तो दे रहे हैं मसल को, है ना, बट हाउ दे आर गिविंग दैट सिग्नल, नो डाउट दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। सी another term you can use for that is the motor neuron, okay, that is motor neuron। एंड ऑल्सो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेल के ऊपर क्या हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड कर रहा है, तो ये जो रिसेप्टर और न्यूरोट्रांसमीटर में जो बाइंडिंग है, दैट फॉर्म्स अ जंक्शन काइंड ऑफ, ओके, दैट इज NMJ, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, ओके। See, now let's talk about different tissues of the muscle. So अगर आप मसल के टिश्यूज देखते हो, let me just change the screen, okay, जो मसल के टिश्यूज हैं basically we have say skeletal tissue, okay, we have smooth muscle tissue, और इसके लिए दूसरा नाम होता है विसरल। विसरल का मतलब होता है जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं स्मूथ। फिर होते हैं आपके कार्डियक, ओके। आप ये इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ वॉलेंट्री वन, दैट मीन्स दिस इज इन योर कंट्रोल, like if you want to blink your eye, so you can blink your eye if you want to, okay, if you want to control that, you don't want to blink your eye at a certain period of time, you can't, I mean you can control that, you can control that, but what like if I'm talking about the beating of your heart, क्या दिल की धड़कन को आप कंट्रोल कर सकते हो, रोक सकते हो, नहीं रोक सकते, दैट मीन्स दिस इज अ काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री, okay, this is a kind of involuntary। And what about the smooth or visceral? You can't control your internal organs, so this is also a kind of involuntary। So you can say we have two types of tissue basically, okay, we have voluntary one or we have involuntary one, okay। Voluntary means skeletal, okay, and this involuntary means we have smooth and the cardiac one। So let's talk about the skeletal tissue now, okay, skeletal tissue। See, skeletal, this is a kind of voluntary tissue, okay, आपकी इच्छा से ही चलेगा, अगर आपको उठना है तो आप उठ सकते हैं, आपको बाहर कहीं घूमने जाना है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर काइंड, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ स्केलेटल टिश्यू, ओके। और यू कैन से मसल्स आर अटैच्ड टू बोन,
ओके, बिकॉज मूवमेंट के लिए तो बोन्स ही इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो अब जो मसल बोन से जो अटैच्ड है, ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ टेंडन्स। ओके, तो अगर मसल और बोन में अटैचमेंट है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ टेंडन्स। और अगर बोन बोन से अटैच्ड है तो उसको बोलते हैं लिगामेंट्स। ओके, दिस इज लिगामेंट। You just have to remember this thing only in that, skeletal. So see, अगर आप skeletal टिश्यू देखते हैं तो ये striated होते हैं। ओके, बड़े थ्रेड लाइक सा स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं, वो ऐसे से होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसा देख रहे हैं तो आपको स्ट्रेटेड से दिखेंगे। इट्स जस्ट कि अगर आप माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो आपको ऐसा सा ही स्ट्रक्चर दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से मसल ऑफ लिम्स। ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर द स्केलेटल टिश्यू। ओके, एब्डोमिनल वॉल्स एग्जाम्पल है ये इसका। एब्डोमिनल वॉल्स में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक दे विल से कि अरे यार हम अपनी इच्छा से थोड़ी कर सकते हैं इनको। सी आपने देखा होगा रामदेव बाबा जी को, वो करते हैं ना, अपने पूरे पेट को हिला लेते हैं, तो वॉल्स, ठीक है, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज योर एब्डोमेन। ओके, दिस is the like the internal organs that is present, and abdominal walls means this outside. Okay, आप नहीं हिला सकते क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। डू योगा तो आप भी ये काम करने लग जाएंगे। सो यू कांट डू दैट बिकॉज दैट नीड्स प्रैक्टिस बेसिकली। ओके, सो एब्डोमिनल वॉल्स कैसी है आपकी, वॉलेंट्री होती है, आपको ये याद रखना है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू। ओके, एंड मसल एंड लिम्स एज यू नो, यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं। ओके, देन these are multi nucleated, बहुत सारे न्यूक्लियस है इसमें। okay, these are multi nucleated and also unbranched. okay, these are बहुत गंदा लिखा जा रहा है। okay, unbranched. I think this is clear to you. Okay, so just have a look there. Let me show you this thing. See, in that structure you can have a very look. Okay, and you can look that. Okay, skeleton में क्या दिख रहे हैं, कितने सारे न्यूक्लियस है, दैट मीन्स ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, ये जो आपको ये धारियां धारियां से दिख रही है ना, दिस इज समथिंग यू कैन से स्ट्रिएटेड। ओके, ये स्ट्रिएटेड हो गई। दैट्स हाउ अ स्केलेटल मसल लुक लाइक। The one important thing that you have to remember in that case is syncytium. Okay, syncytium. अब क्वेश्चन ये होगा का कि ये है क्या। तो सी syncytium इट्स समथिंग जब बहुत सारी सेल्स आपस में फ्यूज कर जाए। ठीक है, बहुत सारी सेल्स आपस में फ्यूज कर गई और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस भी है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, सो इट्स मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, सिंकाइटम का मतलब जब बहुत सारी सेल्स फ्यूज करके एक बड़ी सी सेल बना ले, उसमें साइटोप्लाज्म भी है और उसमें न्यूक्लियस भी है, सो दैट विल बी टर्म्ड एज सिंकाइटियम। So let's talk about now the second type, that is smooth muscle. See, is like if I'm talking about the skeletal one, so that was voluntary. Okay, that means आप अपनी इच्छा से कुछ भी कर रहे हैं। But smooth muscle, it's a kind of, you can say, involuntary. Okay, basically जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं और यू कैन से विसरल ऑर्गन्स, सब इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप इनकी शेप देखते हैं तो वो स्पिंडल शेप होती है। ठीक है, काइंड ऑफ जैसे आई लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पिंडल शेप होती है। एंड दिस इज अनब्रांच्ड। ओके, सो ये अनब्रांच्ड होती हैं। और सी, दिस इज अ स्पिंडल, दिस इज अ काइंड ऑफ स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर। जैसे अगर यहाँ जैसे इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये कैसी है, यूनी न्यूक्लिएटेड। दैट मीन्स इट इज यूनी न्यूक्लिएटेड। और ये कैसी होती है, अनस्ट्रिएटेड होती है। जैसे आपको मैंने बताया था ना, स्ट्रिएटेड मीन्स धारियां। एंड अगर दिस इज अ स्ट्रक्चर तो ये सिंपल है, इसके अंदर कोई ऐसी लाइनिंग नहीं है। जो लाइनिंग लाइनिंग्स होती है ना, दिस इज काइंड ऑफ स्ट्रिएटेड, जो कि आपकी स्मूथ में नहीं होती। Okay, so this is not a structure of the smooth one, but yes, this is the structure of the smooth muscle because this is a kind of unstriated one and having single nucleus in them. Okay, and if I'm talking about the next one, let's say third one is the cardiac. Okay. The cardiac means यहाँ हम हार्ट की बात कर रहे हैं, आपके दिल की बात कर रहे हैं।
ठीक है। सो इसमें क्या होती है, ब्रांच होती है। जो आपका कार्डियक है ना, बेसिकली स्केलेटल स्मूथ का मिक्सचर ही है। कुछ इसके फीचर्स आपके लाइक स्केलेटल से मिलते होंगे, कुछ इसके फीचर्स स्मूथ से मिलते होंगे। ठीक है। सो ब्रांच्ड है ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। इसमें भी क्या है, सिंगल न्यूक्लियस है। यूनिन्यूक्लिएटेड किसकी तरह हो गई है, आपके स्मूथ वाले की तरह हो गई, और ब्रांच किसकी तरह हो गई, आपके स्केलेटल वाले की तरह हो गई। तो समथिंग लाइक दैट यू कैन से दैट। ओके। देन अब इसमें क्या है, इसमें स्ट्रिएटेड तो है बट पेंटेड है। पेंटेड है मतलब डार्क नहीं है, जो बैंड प्रेजेंट है वो डार्क नहीं है, वो पेंटेड स्ट्रिएटेडनेस है। ठीक है, पेंटेड स्ट्रिएटेड है। देन इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क भी होती है। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ गैप वी कैन से इंटरकैलेटेड डिस्क। एंड एक टर्म आती है इसमें, दैट इज सिनकाइटियम। ये सिनकाइटियम, तो सिनकाइटियम आई थिंक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, बट स्टिल एक बार बता दूँ दोबारा से। सिनकाइटम एक टर्म है जो आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। सो सिनकाइटम, अगर बहुत सारी सेल्स लाइक स्मॉल स्मॉल सेल्स हैं, अलग अलग सी सेल है, लेट्स से बहुत सारी सेल्स है, जब ये इकट्ठी हो जाती है ना, ओके, जब ये इकट्ठी हो जाती है बहुत सारी सेल्स एक ही उसमें ग्रुप में, जहाँ साइटोप्लाज्म ये सब इकट्ठा सा हो जाए, सो दिस रिप्रेजेंट योर सिनकाइटियम। Okay, so yes, thank you very much. And if you want to learn about the neural tissue, so stay connected. I will definitely going to post that video in my upcoming lecture. Thank you.